Good morning, student. Bharati College of Engineering and Technology, Durg, Computer Science branch, 7th semester, 4th year student. Subject on Network Programming. My name is Nitish Kumar Chandrakar, Assistant Professor from Computer Science Department. So, today's our topic is Network Architecture. Unit first. What is network architecture? First of all, network architecture, it is basically the physical and logical design which refers to software, hardware, protocols and the media of transmission of data. जो नेटवर्क आर्किटेक्चर रहता है वो बेसिकली फिजिकल एंड लॉजिकल डिज़ाइन होता है जो कि रेफर करता है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड देयर आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है उसके लिए अलग अलग मीडिया होता है. मीडिया मीन्स कोएक्सियल केबल हो गया, फाइबर ऑप्टिक केबल हो गया. इस तरह से जो जितने भी केबल्स रहते हैं वो सारे मीडिया में आते हैं, उसको रेफर करता है. सो इट रेफर्स टू हाउ कंप्यूटर्स आर organized and how tasks are allocated among these computers. The two types of widely used network architectures are peer-to-peer and client server. So, first of all, deal peer-to-peer architecture. What is peer-to-peer architecture? In a peer-to-peer network, tasks are allocated to every device on the network. peer to peer में क्या होता है, जितने भी डिवाइसेस रहते हैं हर एक डिवाइसेस जो है उस नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं और सभी जो कनेक्टेड डिवाइस रहते हैं उस नेटवर्क के अंदर सभी की एबिलिटी सेम होती है. किसी का पावर कम, किसी का ज़्यादा, इस तरह से नहीं होता. सारे की एबिलिटी जो है वो सेम होता है. जैसे कि आप किसी बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो दुर्ग में SBI के एक ब्रांच है, बालोद में भी एक ब्रांच है, रायपुर में भी एक ब्रांच है. तो हर एक जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कंप्यूटर्स हैं, जो ब्रांचेस हैं, वो क्या है, नेटवर्क से कनेक्टेड हैं. तो नेटवर्क से कनेक्ट होने के कारण सभी की एबिलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी. पावर भी क्या रहेगा, सबका सेम रहेगा. मतलब वो भी ट्रांजेक्शन कर सकता है, कौन सा, बालोद वाला, रायपुर वाला भी और दुर्ग वाला भी. मतलब सारे लोग जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. सो furthermore, there is no real hierarchy in this network. All computers are considered equal and all have the same abilities to use the resources available on this network. So this is the architecture of peer-to-peer network. So this is a network and this four are devices. Resources are shared among equals in a peer to peer. जितने भी resources हैं सभी जो है वो एक साथ रहेंगे, सारे की ability जो है वो एक साथ रहेंगे. Next topic is a client server architecture. A client server architecture, in a client server network, a centralized, really powerful computer server acts as a hub in which other computers or workstations clients can connect to. This server is the heart of the system which manages and provides resources to any client that request them. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, एक जो होता है वो सेंट्रल हब होता है. ठीक है, मतलब सभी पावर जो है वो सेंट्रल के पास रहेंगे और उस सेंट्रल सिस्टम से क्या रहेंगे, बाकी जो है वो सिस्टम्स जो है वो कनेक्टेड रहेंगे. इट मीन्स क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट जो है वो जाएगा आपके सर्वर के पास, सर्वर क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्स देने के बाद वो क्लाइंट को क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा. तो इस तरह से पूरा पावर जो है वो सेंट्रलाइज रहता है.
So this is a architecture of client server architecture. This is a file server, main server, total power on this server. So this is a client system. Resource are controlled by the file server in a client server network. So this is a network. Our next topic is IPv4 and IPv6 address structure. So first IPv4 address has the following format. जो IPv4 एड्रेस होता है, यहाँ पे एड्रेस स्ट्रक्चर में दो टाइप के होते हैं. IPv4 होता है, IPv6. IPv4 मीन्स IP इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6. So IPv4 internet protocol version 4 address has the following format: x.x.x.x, where x is called an octet and must be a decimal value between 0 to 255. ये जो 4 टाइम x है डॉट के डॉट में, इसमें x जो है वो क्या है, ऑक्टेट होता है. डेसिमल वैल्यू इसका जो है वो 0 to 255 होता है, के बीच होता है. उससे ज़्यादा और उससे कम माइनस में इस तरह से नहीं होता. ऑक्टेट्स आर सेपरेटेड बाय पीरियड्स. एंड IPv4 वर्जन जो वर्जन 4 है एड्रेस must contain 3 periods and 4 octets. The following examples are valid Internet Protocol version 4 address 1.2.3.4. For example, 0.1.0102.103.104. This is a Internet Protocol version 4. Next is an Internet Protocol version 6 normal address as the following format. इसमें क्या होता है, 8 टाइम डॉट डॉट 4 टाइम डॉट रहेगा और इस तरह से रहेंगे. वेयर y is called a segment and can be any hexadecimal value between 0 to 4 टाइम f. इसमें जो IPv4 वर्जन 6 जो होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है, इसमें 8 टाइम y रहेंगे. y जो होता है वो ऑल्सो कॉल्ड सेगमेंट्स कहलाते हैं. और ये जो सेगमेंट्स रहता है ये वैल्यू जो है इसका हेक्साडेसिमल में होता है. और हेक्साडेसिमल का जो रेंज होता है वो कहाँ तक रहता है, 0 to 4 टाइम f. सो द सेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कोलोन्स नॉट पीरियड्स. ठीक है, कोलोन से क्या रहता है, सेपरेटेड रहेंगे. ये जितने भी है वो कोलोन से क्या रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, नॉट पीरियड्स. ये जो पीरियड होते हैं डॉट डॉट डॉट, इसको पीरियड्स बोलते हैं. तो इससे वो सेपरेट नहीं रहते, इसमें कोलोन से सेपरेट रहता है. एंड IPv6 नॉर्मल एड्रेस मस्ट हैव 8 सेगमेंट्स. 8 segments होंगे. However, a sort from notation can be used in the tab binary specialist web interface for segments that are zeros or those that have leading zeros. The following list show examples of valid IPv6 normal address 2001.db8 कोलोन है, सॉरी डॉट नहीं है, कोलोन है. 4 टाइम 3 कोलोन 4 टाइम 4 कोलोन 4 टाइम C कोलोन 4 टाइम D कोलोन 4 टाइम E कोलोन 4 टाइम F. Okay, so this is the IPv6 and IPv4 address structure. So our next topic is internet protocol. What is internet protocol? First of all, what is IP? So the internet protocol is a protocol or set of rules for routing and addressing packets of data so that they can travel across networks and arrive at the correct destination. जो IP जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होता है जो किसी भी नेटवर्क में एड्रेस या फिर राउटिंग
जो होता है, जो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है ताकि वो सही डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, तो वो होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक तरह से रूल्स बोल सकते हैं। प्रोटोकॉल्स मीन्स रूल्स। जैसे कि कॉलेज का भी अपना रूल्स होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का हर एक जगह में अपना अपना क्या रहता है, प्रोटोकॉल्स रहते हैं, रूल्स रहते हैं। प्रधानमंत्री रहता है पीएम, उसका भी प्रोटोकॉल होता है, कलेक्टर का भी प्रोटोकॉल्स रहता है, ठीक है। तो इस तरह से जो सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होता है, रूल्स रेगुलेशन वगैरह, वो होता है आपका आईपी। नेक्स्ट, द डेटा ट्रैवर्सिंग the internet is divided into smaller pieces called packets. जो डेटा ट्रैवर्सिंग होता है इंटरनेट में, वो स्मॉलर पीसेस में डिवाइड रहते हैं। आप बहुत बड़ा मान लो 2 GB का क्या है, एक फाइल है हमारे पास, तो वो 2 GB के फाइल को डायरेक्ट आप नहीं भेज सकते। क्या होता है, वो जब नेटवर्क से जाता है तो वो स्मॉलर पीसेस में डिवाइड हो जाता है, और उस स्मॉलर पीसेस को क्या बोलते हैं, पैकेट्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैकेट्स। तो पैकेट्स में क्या होता है, फिर ट्रांसफर होता है वन नेटवर्क टू अनदर, देन डेस्टिनेशन तक रीच हो जाता है। आईपी इंफॉर्मेशन इज अटैच्ड टू ईच पैकेट and their information helps router to send packets to the right place. सो इसमें क्या होगा, जैसे हमने पैकेट ट्रांसफ़र किया, पैकेट ट्रांसफ़र होकर वो नेटवर्क लेयर पे जाता है, नेटवर्क लेयर में उसको आईपी प्रोवाइड किया जाता है। वो जो आईपी प्रोवाइड किया जाता है हर एक पैकेट को, तो उस आईपी एड्रेस के थ्रू क्या होता है, वो डेस्टिनेशन तक पहुंचता है यूजिंग राउटिंग। राउटिंग मीन्स रूट, रास्ता। Every device or domain that connects to the internet is assigned an IP address, and as packets are directed to the IP address attached to them, data arrives where it is needed. हर एक जो डिवाइस या डोमेन जो रहता है that connects to the internet is assigned an IP. इंटरनेट से जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उस सबका अपना आईपी एड्रेस होता है। उसी आईपी एड्रेस के थ्रू डेटा क्या होता है, वहाँ पर पहुँचता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका घर का एड्रेस है, अगर कोई आपको लेटर पोस्ट करना चाहता है तो आपके एड्रेस पे पोस्ट करेगा, आपका एड्रेस फर्स्ट वहाँ पे लिखेगा, तभी क्या होगा, उस एड्रेस पे आपका लेटर जो है रिसीव होगा। उसी तरह क्या होता है कि सिस्टम, हर एक सिस्टम जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका क्या होता है, खुद का आईपी होता है, आईपी एड्रेस। उसी आईपी एड्रेस के थ्रू आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो तो सर्वर क्या करता है, आपके पास उसको पहुंचाता है, पैकेट को। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन लेयर। एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल डिफाइंस हाउ एप्लीकेशन प्रोसेसेस clients and servers running on different end systems pass messages to each other. In particular, an application layer protocol defines the type first the type of messages, example request messages and response messages. Next is the syntax of the various messages types, that is the field is the message and how the fields are declinated. Next is the semantics of the fields, that is the meaning of the information that field. Next, field is supposed to contain. Next is rules for determining when and how a process sends messages and responds to messages. So जो एप्लीकेशन लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है,
एप्लीकेशन जो रहता है वो OSI मॉडल का टॉप ऑफ द मोस्ट फर्स्ट लेयर होता है, टॉप लेयर होता है। इसमें क्या होता है, जो क्लाइंट्स रहते हैं जो हमारे स्क्रीन पर होता है, जैसे कि हमने कुछ सर्च किया, ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर या एप्लीकेशन लेयर, बट व्हाट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो हमारे स्क्रीन पर जो होता है वो फाइनली जो हमको दिखता है वो एप्लीकेशन आपका होता है एप्लीकेशन लेयर, जिसमें आपके जितने भी pass messages to other particular and application layer protocol defines type of messages, syntax of various messages types, semantics of the field. These all are the application layers. So I hope these topics are clear. So thanks for watching. Thank you.